guys, welcome back to the Topper Squad. So today we are going to complete aggregate demand and related concepts, the ultimate one-shot revision by Topper Squad, Class 12 Macroeconomics. So let's start with the topics to master today. Meaning of AD, aggregate demand and aggregate supply with components, consumption function and psychological law. Propensity to consume and save means APC, MPC, APS and MPS. Saving curve derivation from consumption curve, investment function, autonomous versus induced, investment determinants, MEI, and rate of interest. So let's begin with the introduction, that is, in this one shot, we analyze how the entire economy functions through planned expenditure. So, in this one shot, we are going to study the entire economy, how functions the planned expenditure. We move from micro demand टू मैक्रो एग्रीगेट डिमांड. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था, मैंने लेक्चर भी दिया है, मतलब लेक्चर भेजा है, आई थिंक सो 2-3 उसमें हो गया था, वन शॉट भी है उसका, ठीक है. तो मैक्रो में एग्री हमने माइक्रो में पढ़ा था, डिमांड चैप्टर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आई थिंक सो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 था, ठीक है. अब हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो एग्रीगेट डिमांड टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. अब हम एग्रीगेट पढ़ेंगे, पूरी इकोनॉमी का पढ़ेंगे. So let's begin with the meaning of aggregate demand. So what do you mean by aggregate demand? What is aggregate demand? देखो, aggregate demand refers to the total value. The total value, because we are finding out the full economy's aggregate demand. So first we will the total value of all the final goods and services, which all sectors means how many sectors are there in an economy? There's no 3. If you will answer 3, you are wrong, because let's upgrade yourself, bro. See, there is 4 sectors in an economy: firm, household, government, and rest of the world. This is the sectors of the economy. These are not primary, secondary, tertiary. No. Now we are in 12th. Now we are going to be in college. So little bit upgrade yourself. Okay. So meaning of aggregate demand. Aggregate demand refers to total value of final goods and services which all sectors, these 4 all sectors want of an economy. ये 4 sectors of an economy, all sectors of an economy are planning. वो प्लान कर रहे हैं, ये प्लानिंग चल रही है, अभी हुआ नहीं है, प्लानिंग चल रही है. To buy at a given level of income during an accounting year. एक accounting year में तो हम इसको बोल सकते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट. क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग अ पीरियड दिया, ऐसा नहीं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसी टाइम पे नहीं, एक पीरियड ऑफ टाइम दिया, तो इसको हम फ्लो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं. अगर बोला होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो फिर हम इसको स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है. तो अब आइज क्लोज करो और इससे मेरे साथ एक बार फिर से बोलो. तो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल वैल्यू of final goods and services, which all sectors in an economy are planning to buy at the given level of income during an accounting year. ठीक है. सो क्या बोला मैंने, देखो, एडी एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू total value of final goods and services
which all sectors, चारों मतलब all sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during an accounting year. So it is a flow concept measured over a period of time. Now, components of aggregate demand. So what are the components of aggregate demand? We are going to see here. Now, components of, so what are the components of aggregate demand? क्या कौन कौन से सेक्टर्स? 4 सेक्टर्स. फर्स्ट फर्म, हाउस होल्ड, देन गवर्नमेंट, देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. 4 सेक्टर्स है. मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बताया था कि हमारे सिलेबस में कितने हैं? सिर्फ 2. क्या क्या पढ़े थे? हाउस होल्ड और फर्म. हाउस होल्ड और फर्म. तो ये जो अब मैं आपको ये समझा, देखो ADC, ये जो C लिखा है ये किसके लिए? दिस इज फॉर कंजम्पशन. ठीक है, कंजम्पशन. दिस आई वेट फॉर मिनट, मैं इसको अच्छे से करूँ. ठीक है, ये C किसके लिए? कंजम्पशन के लिए. कंजम्पशन को डिनोट करता है. I मतलब इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रही है. G मतलब गवर्नमेंट. और X माइनस M मतलब नेट एक्सपोर्ट्स. जो हमने किसमें पढ़ा था याद है? एक्सपेंडिचर मेथड में हमने ये लिखा पढ़ा था. बस वो है, समझना. हम इन चारों सेक्टर को जब प्लस कर देते ना, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, that of final goods and services which all sectors in an economy are planning, ये भी प्लान हो रहा है, are planning to क्या? are planning to buy at a given level of income. वो given level of income पे buy करना चाहते हैं. सारी चीजें प्लान कर रहे हैं. given level of income ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. एक अकाउंटिंग ईयर में वो प्लान कर रहे हैं इन सारी चीजों को लेने का. सो C मतलब आपको समझ में आ गया. C मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. I मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस इन कियंस. ठीक है. G गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. और X माइनस M मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स है. क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी व्हाट इट्स रिटन. हाँ, थ्योरी, किनीज थ्योरी. नाउ अब मैंने आपको टेबल दिखाया था. याद है टेबल दिखाया था? ये रहा. क्या है इसमें? आउच. हाँ, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल. इसमें है इनकम. यहाँ क्या है? यहाँ है इनकम. यहाँ है कंजम्पशन. यहाँ है इन्वेस्टमेंट. और यहाँ है एडी. एडी का फॉर्मूला क्या है? अब हम सिर्फ 2 पढ़ना है, हाउस होल्ड पढ़ना और एक तो फॉर्म पढ़ना है. ठीक है, तो फॉर्मूला छोटू सा रहेगा. क्या रहेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला इतना रहेगा. तो मैं बताती हूँ. हटे. हाँ, फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा. फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ये है अपनी पूरी डेफिनेशन, मतलब सॉरी, ये है अपना फॉर्मूला. AD इज इक्वल्स टू C प्लस आई. ठीक है, AD इज इक्वल्स टू C प्लस आई. ये अपना फॉर्मूला है. ठीक है, समझ में आया? अरे हचो. ओके, ना एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल. ये शेड्यूल याद है? किया था हमने. ये है इसको नीचे ऊपर. ये रही इनकम, ये रहा कंजम्पशन, ये रही इन्वेस्टमेंट. प्लस हो गया तो ये आ गया अपना एग्रीगेट डिमांड. कैसे किया? अब आप पूछोगे 40 कैसे आया भाई?
ये 40 है एग्रीगेट क्या बोलते हैं इसे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मीन्स अगर इनकम ज़ीरो है तभी भी कंजम्पशन होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो आप अपनी पूरी करोगे। तो ये 40 कहाँ से आया, या तो कहीं से उसने बोरो कर लिया, या तो क्या हो गया, या उसके पास सेविंग्स थी। तो ये 40 करोड़, ये सब करोड़ में वैल्यू, ठीक है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी की निकालनी है तो ऑब्वियसली ऐसे ₹20 नहीं होगा, ₹40 नहीं होगा, करोड़ होगा, 40 करोड़, ठीक है। तो 40 करोड़ उसके पास रखे होंगे, सेविंग्स होंगी, या उसने किसी से बोरो किया होगा, ठीक है। तो इनकम ज़ीरो है तभी भी वो क्या कर रहा है, तभी भी वो क्या कर रहा है, तभी भी वो खर्च कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है। और ये 100% से बढ़ता जा रहा है, और ये 80 से बढ़ता जा रहा है। और इन्वेस्टमेंट सेम इसलिए है क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता, अभी हम आगे पढ़ेंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास 100 रुपये आ गए या 100 करोड़ थे, आपने बोला था कि अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, मैं ऐसा करता हूँ, ये जो 20 करोड़ की बिल्डिंग मैं बनवाना चाह रहा हूँ, अब मेरे पास 120 करोड़ आ गए, तो मैं उसको और बड़ा बनवा देता हूँ। भाई नहीं, क्यों करवाओगे आप, अभी वो प्रोसेस चल रहा है, उसको बनने में टाइम लगेगा। अब आप बोलो कि नहीं इसको इतना लंबा बनाओ, तो भाई वो जो काम हो रहा है वो भी नहीं होगा, वो भी रुक जाएगा, और सब जो अच्छे से बनना था वो सब तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हमारी सेम होती है, चाहे हमारे जितने पैसे बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट सेम, अंडरस्टूड। इन्वेस्टमेंट कभी चेंज नहीं होगी। तो ना ये जो शेड्यूल है एग्रीगेट डिमांड की, याद रखना, क्योंकि ये आगे अभी मैं बहुत यूज करूंगी इसको, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब देखो इसका कर्व देखो, एग्रीगेट डिमांड डायग्राम देखो, एडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस। देखो एग्रीगेट डिमांड कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो एग्रीगेट डिमांड 60, 140, ओके क्या हो गया भाई, हाँ 60, 140, 220, 380, तो ये है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे ग्राफ कैसे बनेगा इनका, अब इन तीनों का मैं आपको ग्राफ बना के दिखाती हूँ, ठीक है। इन तीनों का मैं आपको क्या बना के देखती हूँ, ग्राफ बना के दिखाती हूँ। तो 2 मिनट से रुक जाना, मैं एक काम करती हूँ, हाँ तो मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाती हूँ, ये रहा और ये, ठीक है। तो ये रहा अपना एक्स एक्सिस और ये रहा अपना वाई एक्सिस, ये है अपना इनकम और ये है अपना कंजम्पशन, ठीक है। अब मैं एक काम करती हूँ, देखो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ मुझे बहुत सीधा लग रहा है, तो कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ लिखती हूँ इधर 0, 100, 200, 300, 400, तो छोटा हो गया ये, ठीक है। तो 400 तक रुक जाओ, मैं आपको निकालती हूँ कुछ, इसको बड़ा ही कर देते हैं, 1 मिनट 2 मिनट रुकना, ठीक है। तो नीचे जो है वो इनकम है और ऊपर क्या है, कंजम्पशन। अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊँ, तो ग्राफ में थोड़ा अलग कलर से, हाँ अब देखो, अब मुझे ना इन्वेस्टमेंट का ग्राफ सही लग रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे 20 करोड़ ले लेती हूँ और क्या हो गया, हाँ ये ले लेती हूँ और सीधा सा कांस्टेंट सा इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बना देती हूँ, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, इन्वेस्टमेंट का ग्राफ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं अब मैं बनाती हूँ कंजम्पशन का ग्राफ। कंजम्पशन का ग्राफ कहाँ से बनेगा, ओरिजिन से नहीं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है ना, इनकम ज़ीरो है तभी भी कंजम्पशन तो करेंगे ही, बेसिक नीड्स तो पूरी करेंगे ना।
यहाँ से जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपना कंजम्पशन का ग्राफ है, ठीक है। फिर अब कंजम्पशन का भी बना लिया, इन्वेस्टमेंट का भी बना लिया। अब हम बनाएंगे वो C+I AD एग्रीगेट डिमांड का। कैसे बनाएंगे? 60, 140, 220, 380 कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ दूसरा कलर, कौन सा लूँ? ब्लैक नहीं, ग्रीन ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 60 करोड़ और यहाँ पे इसके पैरेलल मैं ये लाइन खींच देती हूँ। ये क्या है? ये अपना एग्रीगेट डिमांड, ये बन गया अपना ग्राफ। और ये, हाँ, एक और चीज, ये जो इसके बीच का ये जो गैप है, इनके बीच का, ये है इन्वेस्टमेंट। ये जो गैप है बीच का, ये है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये जो गैप है एडी और एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच में, वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड? डन? क्लियर? ग्राफ क्लियर? डन? ऑल डन? ठीक है, डन। लेट्स मूव ऑन। मैंने आपको डायग्राम बता दिया, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसा था? ऐसा ही था। वो यहाँ पे हमने 60 लिया था, 60 करोड़। क्या किया था हमने? यहाँ पे ले लिया था, इसने ना यहाँ पे लिया, इसने यहाँ पे 60 करोड़ लेकर यहाँ बना दिया। हमने पहले इन्वेस्टमेंट का बनाया था, फिर कंजम्पशन का बनाया था, और फिर एडी का बनाया था, ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया। तो एडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस 60 करोड़ बिकॉज कंजम्पशन इज नेवर जीरो इवन एट जीरो इनकम। हमने देखा ना, हम जीरो इनकम पे भी 40 करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो मतलब जीरो इनकम पे भी हम 40 करोड़ खर्च कर रहे हैं। इनकम कमाए ना कमाए कोई प्रॉब्लम नहीं, खर्चा तो होगा ही, बेसिक नीड्स तो आपकी फुलफिल होगी। तो 40 करोड़ खर्चा हो रहा है। तो कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। समझ में आया? पक्का? ठीक, आगे बढ़। अब आता है एग्रीगेट सप्लाई पे। एग्रीगेट डिमांड देखा था, अब एग्रीगेट सप्लाई देखेंगे। क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू, वो टोटल वैल्यू था एग्रीगेट डिमांड, ये मनी वैल्यू है। तो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स, उसमें क्या था? ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें क्या है? आर प्लानिंग, उसमें प्लानिंग था। इसमें क्या है? Aggregate supply refers to the money value of final goods and services which all producers are willing to supply in an economy during a given period. तो ये क्या है? एग्रीगेट सब। अब जब आपके पास इनकम आ गई तो आप इनकम का क्या करोगे? दो यूज कर सकते हो, या तो उसमें पैसे खर्च कर सकते हो, कंजम्पशन कर सकते हो, या तो उसे सेव कर सकते हो। दो चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू C+S लिख सकती हूँ, मतलब y मतलब इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स कर सकती हूँ, ओके। जो एग्रीगेट सप्लाई है, वो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम और y इज इक्वल्स टू C+S। अब मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाऊंगी। कैसे प्रूफ करूंगी? एक मिनट। प्रूफ ऐसे दूंगी, मुझे टेबल बनाना पड़ेगा और वैसे ही टेबल बनाना पड़ेगा। तो मुझे उसके लिए लगेंगी पहली लाइन, ठीक है। ये हो गया इनकम, ये हो गया कंजम्पशन, ये हो गया इन्वेस्टमेंट, और ये सॉरी C+S है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, हाँ, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे कंजम्पशन, ठीक है। अभी दो चीजें लिखूंगी मैं, ठीक है, तो याद रखना। और कंजम्पशन, ठीक है। कलर चेंज कर देती हूँ, येलो ले लेती हूँ। 0, 100, 200,
इसको ऊपर कर देती हूँ 300 400, यहाँ तो हम 400 तक ही लेंगे, ठीक है 500, ठीक है 40 ऑटोनॉमस कंजम्पशन, फिर 80% से बढ़ाते जाएंगे 120 200 360 और सॉरी 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 गलत हो गया, ठीक है और देन 280 देन 360, ठीक है 500 लोगे तो 440, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेविंग्स, क्या लिखेंगे सेविंग्स, ठीक है यहाँ पे सेविंग्स लिखेंगे। अब सेविंग्स में क्या होगा 0 -40 करेंगे कितना आएगा 0, तो ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं सी डैश से, तो आंसर कितना आएगा इसमें -40, कैसे कैसे 0 -40 करोगे तो आंसर क्या आएगा -40 आएगा ना। इसमें क्या आएगा 100 -120, सॉरी हाँ 100 -120 करेंगे तो -20, 200 200 0, मतलब ना ज़्यादा ना कम, बराबर 300 380 20, सेविंग्स हो गई 400 360 40। तो अब मैं आपको बताऊंगी मैजिक एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू क्या होता है C प्लस एस, सॉरी सी प्लस सेविंग्स थोड़ी होगा, कंजम्पशन प्लस इनकम है ना। तो अब देखो कैसे होगा, गोलमाल करूँ मैं, ठीक है तो अरे दूसरा कलर ले लेती हूँ, एक मिनट, हाँ आया कि हाँ एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकालेंगे C प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो लेट्स टेक आउट, कलर ले लेती हूँ, येलो ले लिया, ओके नाउ C प्लस एस, इसमें लिख देती हूँ सेविंग्स प्लस सॉरी बाहर जा रहा है, एक मिनट, ठीक है C प्लस एस, ठीक है। अब देखो 40 ±40 कितना आएगा, हाउ मच गाइज 0, देन 120 में से -20 करो 200 0, 380 में 20 प्लस करो 280 में 20 प्लस हो रहा है, ठीक है फिर उसके बाद इधर क्या आएगा 360 में 40 प्लस करेंगे 400। एक मिनट गाइज, एक मिनट, कुछ नोटिस किया आपने, कुछ दो सेम है, कुछ नोटिस किया आपने गाइज ब्रो, क्या है ये और ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल, नोटिस किया, ये 0 तो ये भी 0, ये 100 ये भी 100, 200 200 300 300 400 400। ओ बाप रे, मतलब क्या समझे कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स, सॉरी कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अब खोला दिमाग, बत्ती जल गई दिमाग की, समझ में आया अब क्यों मैं बोल रही थी, क्यों ये लिखा है AS और इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, क्यों लिखा है अब समझ में आया, अब दिमाग की बत्ती जल गई।
क्रिस्टल क्लियर हो गया, एकदम हो गया, पक्का हो गया, पक्का हो गया, पक्का क्या एकदम क्लियर। एक बार इसको फिर से देखो, फिर से समझो, और अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? पक्का पक्का पक्का, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन गाइस। तो इसलिए हम बोलते हैं कि Y और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अपना कंक्लूजन निकल के ये आ गया। वेरी गुड, क्लैपिंग। ठीक, तो ठीक है, इसका ग्राफ ये ऐसा होगा। कैसा होगा इसका ग्राफ? ये जाएगा इसका ग्राफ ऐसे, तो इसका ग्राफ होगा ऐसे। कैसा होगा? ऐसे, ऐसा होगा, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा होगा। ये उससे ही होगा, ओरिजिन से होगा इसका, ठीक है, ओरिजिन से होगा इसका ग्राफ, ठीक है। ये यहाँ से नहीं होगा, ओरिजिन से होगा, यहाँ से, ठीक है, ठीक है, क्लियर। 45 डिग्री एंगल बनाएगा, 45 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है, 45 डिग्री। द AS कर्व इज अ 45 डिग्री लाइन। एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है? 45 डिग्री लाइन है। ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ही ऑरिजिनेट हो रही है, बिकॉज इनकम इज इक्वल्स टू सप्लाई। इनकम, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था दोनों इक्वल है, ठीक है। अब हम आएंगे कंजम्पशन फंक्शन पे, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन पे। ओके, तो कंजम्पशन फंक्शन क्या कहता है? कंजम्पशन फंक्शन हमसे ये कहता है कि इट रेफर्स टू द देखो, इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन। क्या बोलता है कंजम्पशन फंक्शन? कि इट रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। अंडरस्टूड? और ये है इसका फॉर्मूला, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू F और इनकम, फैक्टर इनकम, ठीक है। अब आता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपको इसके फॉर्मूले याद होंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC, APS, APC, सॉरी, APC। अभी हम APS और MPS भी आगे पढ़ेंगे, मतलब प्रोपेंसिटी टू सेव आगे पढ़ेंगे। इसका आपको वो याद है क्या फॉर्मूला? अब इसका क्या था? एवरेज का कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, और इसका क्या था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ठीक है। आगे बढ़, अब इसके बीच में मैं आपको रिलेशनशिप बताती हूँ। तो रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS, APC और APS के नहीं, एक मिनट, रिलेशनशिप बिटवीन, ओके, अब APS पहले बताती हूँ, फिर ये आपको रिलेशनशिप्स बाद में बताऊंगी। नहीं, इसमें दिया ही नहीं, आई थिंक सो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो APC हमने देख लिया, APS और MPS एक और बार देख लो। देखो, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, ग्राफ भी एकदम सेम है, ग्राफ भी मैंने आपको जो सिखाया था वो एकदम सेम है, ठीक है। तो मैं ग्राफ, अगर आप चाहो तो मैं बना दूंगी, चाह रहे हो बनाऊं, ठीक है, बना दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले ये समझ लो कि APC और MPC हमने देख लिया कि APC का फॉर्मूला हमने देख लिया,
कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, और इसका फॉर्मूला हमने देख लिया मार्जिनल का, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अब वो है प्रोपेंसिटी टू सेव, ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, वहां पे प्रोपेंसिटी टू सेव है। तो अब प्रोपेंसिटी टू सेव में क्या करेंगे, प्रोपेंसिटी टू सेव में सेम है, ए बस उसमें एक डिफरेंस है, इसमें कंज्यूमर उसमें सेव है, तो उसमें एपीएस है और उसमें एमपीएस है। फॉर्मूला क्या था, अब मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। एपीएस का फॉर्मूला है, सिर्फ ऊपर वाला चेंज होगा, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। और अगर हम एमपीएस का फॉर्मूला देखें तो क्या है, चेंज इन कंजम्पशन, सॉरी चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। बस इतना सा डिफरेंस है कि सी की जगह एस लगाना है, काम वही खत्म हो गया। इतना इजी फॉर्मूला है, 2 मिनट में आप सीख गए, ठीक है, 2 मिनट में आप सीख गए, समझ में आया। देखो इसका ग्राफ भी बिल्कुल उस जैसे मैंने उसमें ग्राफ सिखाया था उसकी तरह है, कोई डिफरेंस नहीं है, लिटरली कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो ग्राफ पूछे नहीं जाता है, ग्राफ 2 मिनट गाइस, हाँ पूछे नहीं जाते। देखो अगर आप बोलोगे मुझसे कि ग्राफ मैं सिखा दूँ, या मैं दूसरी क्लास में, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि ग्राफ जो है वो मैं आपसे करवाऊँ या आपको सिखाऊं, तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अगर जो आप बोलोगे मैं करवा दूँगी, ठीक है। इसमें मैं अगर ग्राफ बनवाऊँ कि नहीं बनवाऊँ, नहीं बनवाऊँ, बनवा दूँ। देखो ग्राफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अच्छा सुनो एमपीएस का ग्राफ बनवाना सिखा देती हूँ, एमपीएस का सिखा देती हूँ, एपीएस का सेम है एपीसी की तरह, एमपीएस का सिखा देती हूँ। क्या है वो देखो, अब देखो एमपीएस का ग्राफ देखेंगे हम, तो ये है और ये है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, यहाँ पे इनकम है, ठीक है, यहाँ पे इनकम, तो एमपीएस का हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, देखो आप ग्राफ का पूरा वीडियो बनाओ अलग से, मैं बना दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलोगे वो मैं कर दूंगी, ठीक है, डन। अभी मैं आपको एमपीएस का ग्राफ बताती हूँ। एमपीएस का ग्राफ कैसे, एमपीएस का ग्राफ ऐसा है कि अगर मैं यहाँ ये है अपना सेविंग्स, मैंने बताया ना सेविंग्स हम कैसे 45 डिग्री याद है, ठीक है। अब ये एस है, ठीक है, ये एस है। अब यहाँ से एक लाइन ले लो, दूसरा कलर लेती हूँ मैं, यहाँ से आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सा भी पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब ये मान लो ये 0 है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब ये मेरी इनकम जो है वो बढ़ गई, प्रमोशन हो गया मेरा, ठीक है। तो ये A1, ये B1, ठीक है, ये बढ़ गई, ये भी बढ़ गई। अब ये ठीक है। अब ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब मैं इसको बोल सकती हूँ, मैं ये जो है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो, सुनना ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब मान लो मैंने इतने से पार्ट को दूसरा कलर से समझाऊं, ये पार्ट को मैंने बोला चेंज इन सेविंग, मार्जिनल निकाल रही हूँ ना इसलिए चेंज इन सेविंग, और इतने पार्ट को मैंने बोला चेंज इन इनकम, ठीक, चेंज इन इनकम। अब क्या हुआ, अब व्हाट हैपेंड, ठीक है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
अब मैं इतने से भी पार्ट को, ये जो इतना पार्ट है इसका, तो मैं इसको भी बोलूंगी, ये इसको चेंज इन सेविंग, इसको भी बोलूंगी मैं चेंज इन सेविंग, और ये जो पार्ट है ये वाला, इसको मैं बोल दूंगी चेंज इन इनकम। यही ग्राफ था, यही समझाना था। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। एपीसी और एपीएस का रिलेशन क्या होता है वो बताओ। अब देखो, अगर हम इसको डिराइव करना, ये आता है डेरिवेशन करना, तो एक सीख लो। मैं आपको इस बताती हूँ कैसे करना है। एपीसी, सॉरी ऐसे नहीं करना, रुक जाओ। y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। अब इसको डिवाइड कर दो, पूरे फॉर्मूले को डिराइव कर दो, डिवाइड कर दो y से। जैसे हम पूरे फॉर्मूले को डिवाइड करते हैं 2 से 4 से, वैसे हम पूरे इस चीज को डिवाइड करेंगे किससे? y से। ठीक है, इससे पूरा डिवाइड करेंगे y से। तो अब ये जब फॉर्मूला सॉल्व हो रहा है, ये 1 आ रहा है, तो ये 1, और 1 मिनट, ये देखा देखा सा नहीं लग रहा? c डिवाइडेड बाय y, c कंजम्पशन इनटू इनकम, एपीसी होता है, और सेविंग्स प्लस इनकम, सेविंग्स डिवाइडेड बाय एपीएस होता है गाइस। ओ माय गॉड, ये तो डिराइव हो गया, मतलब 1 इज इक्वल्स टू एपीसी प्लस एपीएस। ओ माय गॉड, आंसर आ गया, डेरिवेशन हो गया। वाओ, नाइस, समझ में आया? अब एपीसी और एपीएस का डेरिवेशन तो आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एमपीएस, एमपीसी का डेरिवेशन। बस इसमें यही है कि चेंज इन करना है। तो चेंज इन इनकम डिवाइड इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग प्लस चेंज इन, सॉरी, कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। इसको भी हम पूरा y से ही डिवाइड करेंगे। अब क्या होगा देखो, क्या होगा? तो चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू इन सेविंग्स होगा। ठीक है, अब चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन, ये कट गया, ये कट गया, एक आ गया। अब 1 मिनट, मुझे कुछ देखा देखा सा लग रहा है। सी प्लस चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ये कहीं तो सुना सुना फॉर्मूला है। एमपीसी का फॉर्मूला है गाइस, एमपीसी का फॉर्मूला है ये। और 1 मिनट, ये चेंज इन सेविंग, ये तो एमपीएस का फॉर्मूला है। तो मतलब 1 इक्वल्स टू एमपीसी प्लस एमपीएस। हो वाओ, डेरिवेशन निकाल लिया। अब हमने पढ़ लिया रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी और एपीएस और एमपीसी और एमपीएस, पढ़ लिया गाइज, पढ़ लिया। अब न्यूमेरिकल थोड़ा सॉल्व करें, ये थोड़ा वैसा, हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंजम्पशन के। अभी सेविंग फंक्शन में अब नहीं, कंजम्पशन का फॉर्मूला है, ये याद रखना। देखो, कंजम्पशन में 2 तरीके का होता है। एक तो होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब जब इनकम 0 है तभी भी हम कंज्यूम कर रहे हैं 40 करोड़, और
इंड्यूस्ड कंजम्पशन होता है एक चीज। क्या होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन? मतलब कि इनकम है, अगर इनकम नहीं थी तभी भी हम कंजम्पशन कर रहे थे, इनकम है तो उस कंजम्पशन को हम बढ़ा दिए, तो वो होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। उसको हम इससे डिनोट करते हैं, MPC और ब्रैकेट में इनकम, इससे डिनोट करते हैं। और MPC को आप एक स्मॉल b भी बोल सकते हैं। अब ये मत पूछना कि ये b कहाँ से आया, ये b कहाँ से आया यार, क्वेश्चन मत पूछो कमेंट सेक्शन में b कहाँ से आया, मेरे सर से नहीं आया, b आया, उससे आया है। उस MPC को b भी बोलते हैं, ठीक है सॉरी, MPC को भी b स्मॉल b से भी डिनोट करते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट को I से डिनोट करते हैं, कंजम्पशन को C से डिनोट करते हैं, इनकम को Y से डिनोट करता है, वैसे MPC को स्मॉल b से डिनोट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला देख लो, फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला है बड़ा C इज इक्वल्स टू C स्लैश मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस B और Y। ये B क्या है? ये B MPC है, ठीक है। MPC बोल लो या स्मॉल b बोल लो, दोनों बात एक ही है। ये है आपका क्या है? ये है आपका कंजम्पशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब वो आपको B लिख के देंगे या MPC लिख के देंगे, कोई आपको कंफ्यूज कर सकते हैं B लिखकर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप टॉपर स्क्वाड के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, सीधा B मतलब आता है, MPC होता है, पता है हमें, ठीक है। तो ये देखो कैसे किया हमने, फॉर्मूला लगाया और फट से कर दिया, ठीक है। फॉर्मूला लगाया, U हो गया। अब सेविंग फंक्शन, वो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला देखा, अब सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला देखेंगे। अभी हमने देखा था MPS को कैसे लिखते हैं, अब हम देखेंगे MPC को कैसे लिखते हैं, हमने देखा स्मॉल b। अब हम देखेंगे MPS को कैसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं गाइस MPS को? MPS को ये से लिखते हैं 1 माइनस बी, 1 माइनस बी। अब देखो इसने इसका फॉर्मूला ऐसे आया, 1 इज इक्वल्स टू MPC प्लस MPS, हमने पढ़ा अभी जस्ट हमने पढ़ा। अब मान लो कि मैंने तुम्हें MPS निकालना है, ठीक है, MPS निकालना है, तो मैं क्या करूंगी 1 माइनस MPC कर दूंगी, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 माइनस MPC को B भी बोलते हैं, तो 1 माइनस B इज इक्वल्स टू MPS, ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये लो MPS को डिनोट कर दिया आपने 1 माइनस B से, MPS को डिनोट कर दिया आपने 1 माइनस B से, ठीक है। तो ये है उसका फॉर्मूला, क्या है? S इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन में माइनस का साइन दिया हो ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब हम फॉर्मूला करेंगे तो माइनस का साइन जरूर 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 लिखेंगे, नहीं तो ये मिस्टेक और 0 नंबर, ठीक है। 0 नंबर नहीं लाने, कितने लाने? 100 आउट ऑफ 100 लाने इकोनॉमिक्स में, तो याद रखना, ठीक है। तो ये कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब C स्लैश प्लस स्मॉल b और फिर इनकम, ये था। सेविंग्स का क्या है? S इज इक्वल्स टू माइनस C स्लैश प्लस 1 माइनस b ब्रैकेट में इनकम, या 1 माइनस b ब्रैकेट में और फिर इनकम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब सेविंग कर्व डेरिवेशन, सेविंग कर्व डेरिवेशन क्या होता है? हमने देखा था, मैंने आपको पढ़ाया भी था, क्या देखा था कि याद है हमने वो किया था, सेविंग्स निकाली थी -40 -20 फिर 0 200 आ रहे थे दोनों में, 200 200 इनकम में भी और कंजम्पशन में भी।
हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं ना कम खर्च कर रहे हैं। तो उस ये जो है ना, ये दिख रहा है आपको, ये जो 200 आ रहा था ना, वो ये है 200 जो आ रहा था ना, वो ये है 200 जो आप ये आ रहा था ना आपका, वो ये है 200 इज इक्वल्स टू 200। मतलब जितना इनकम आ रहा है उतना ही हम खर्च कर देते हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। तो इसको हम इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन बोलते हैं, और बीईपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। और ये नीचे हमने क्या किया, नीचे -40 से शुरू किया। क्यों? क्योंकि दिस सेविंग हो रहा था तो -40 से शुरू किया। ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है। तो आइडेंटिफाई ब्रेक इवन पॉइंट वेयर वाई इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। एट दिस पॉइंट सेविंग्स आर 0। आपने जितना कमाया उतना पूरा खर्च कर दिया। तो इस पॉइंट पे सेविंग्स कितनी है? अंडा, सेविंग्स कुछ है ही नहीं। तो आप डिस सेविंग और कर रहे हो, इनकम 0 है, तभी भी आप क्या कर रहे हो? कंजम्पशन कर ही रहे हो। इनकम 0 है, तभी भी आप क्या कर रहे हो? कंजम्पशन कर ही रहे हो। 40 करोड़ कर रहे हो। ऑटोनॉमस कंजम्पशन। डिराइव एस कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव, नीचे से हो रहा है ना, वो देखो। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, दिस इज डिस सेविंग एंड दिस इज सेविंग्स। ठीक है। और ये बीच का पार्ट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। नीचे भी हम देखेंगे तो जहाँ पे वो मिल रहा है, जहाँ पे ये लाइन जा रही है, उसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। और ये जहाँ पे है उसको सेविंग्स, और यहाँ पे इसको कंजम्पशन यहाँ ये इसको डिस सेविंग्स और इसको सेविंग्स। ठीक है, क्लियर? लेट्स मूव ऑन। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ लो। अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ लो, ये क्लास खत्म हो जाएगी। सॉरी, टेस्ट के क्वेश्चंस दूंगी मैं, फिर क्लास खत्म हो जाएगी, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा आराम से। ठीक है, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा आराम से। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन में मैंने जैसे आपको बताया था, कंजम्पशन के 2 पार्ट है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो सेविंग फंक्शन में भी हमने देखा था इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस, इसमें भी हम देखेंगे इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड मतलब कि ऑटोनॉमस का वो, जैसे हमने देखा था ना, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट थी, 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट क्या थी? इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट थी। तो वैसे ही यहाँ पर ऑटोनॉमस कौन करता है? गवर्नमेंट, सोशल वेलफेयर के लिए। जब गवर्नमेंट के पास इनकम आएगी तब इस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई मतलब नहीं, पैसे कमाओ ना कमाओ, ये गवर्नमेंट करती है हमारे लिए। ठीक है। एंड गवर्नमेंट ये देखती है कि भाई जब इनकम आएगा तब ब्रिज बनवाएंगे, ये करवाएंगे, या एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, नहीं, ये मिड डे मील प्रोवाइड कराएंगे, नहीं। गवर्नमेंट के पास इनकम हो ना हो, वो लोन लेकर, वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर, कहीं से भी लोन लेकर करवाएगी। तो ये ऑटोनॉमस गवर्नमेंट करवाती है, और ये इंड्यूस ये प्राइवेट सेक्टर करता है, जो जिनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना है। तो इंड्यूस में वो इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है, पर ऑटोनॉमस में इन्वेस्टमेंट सेम होती है। तो जो हम पढ़ के आए हैं वो ऑटोनॉमस है। इनकम चाहे इनकम बढ़े कम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी। ठीक है। तो जो इंड्यूस्ड होता है वो क्या करता है? वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है, ड्रिवन बाय प्रॉफिट कमाने का मकसद होता है उसका। और ऑटोनॉमस, गवर्नमेंट का कोई प्रॉफिट कमाने का मकसद नहीं होता। गवर्नमेंट चाहती है
कि जो इकोनॉमी है वो अच्छे से रहे। तो इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम बाय सोशल वेलफेयर करती है, गवर्नमेंट करती है। ठीक है, इंड्यूस में अगर हम देखेंगे 100, 200, 300, 400, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ जाएगी, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ बढ़ जाएगी। अब अगर हम ऑटोनॉमस में देखेंगे तो इनकम 0 भी हो 20 करोड़ होगा, इनकम 100 हो 20 करोड़ होगा, इनकम 200 तो 20 करोड़ होगा, इनकम 400 हो 20 करोड़ होगा, इनकम 300 हो 20 करोड़ होगा। सर में इंड्यूस वर्सेस ऑटोनॉमस ग्राफ, ये ग्राफ है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट देखें तो जो है वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, सीधी है, सीधी है बिल्कुल, जो हमने देखा था एग्रीगेट डिमांड में सीधी थी बिल्कुल, तो वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। और अगर हम देखें इंड्यूस का तो वो ऐसे रहेगा, ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, ओरिजिन का गैप थोड़ा सा देकर ऐसा रहेगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लो, फिर मैं क्लास एंड नहीं, फिर टेस्ट दे के 40 मार्क्स का फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू किनीज डिसीजन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। डिसीजन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। एक तो MEI मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, MEI मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब आप लोन लेते हो बैंक से तो आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, 12%, 4% या जो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। से एग्जाम्पल दूंगी जिससे आप यूं समझ जाओ। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर, सही क्या हो गया भाई, हाँ, ये एक आदमी था जिसका नाम था मितिशा, मान लो, या प्रार्थना मान लो, जो मानना मान लो, मित्ती है नहीं, भाई 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 भाई, ये तुम हो, तुम में से कोई हो, ठीक है, तुम में से कोई हो ये, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने एक मशीन खरीदने का सोचा। ये मशीन थी 10,000 की, ये मशीन कितनी थी, 10,000 थी। उसके पास तुम्हारे पास 10,000 रुपीज नहीं है, तुम क्या करोगे, तुम जाओगे बैंक के पास, बैंक से बोलोगे बैंक भाई हमें उधार दे दो। तो उसने बोला अच्छा उधार तो दे देंगे। उसने तुम्हें 10,000 रुपीज उधार दे दिया, पर बदले में जब तुम उसको लौटाओगे तो 10,000 के साथ तुम्हें 12% का लोन भी चुकाना पड़ेगा। तो ये 12% क्या है, ये 12% क्या है, ये ROI है। ये 12% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। अब MEI क्या होता है, MEI क्या होता है, देखो अब ये जो मशीन है, अब मशीन मान लो तुम्हें 20,000 का प्रॉफिट दे रही है या 2,000 का प्रॉफिट दे रही है, तो मशीन गिव्स अ नेट रिटर्न, तुम्हें नेट रिटर्न दे रही है 2,000 का। ठीक है भाई, तुम्हें मशीन नेट रिटर्न दे रही है 2,000 का। इसका एक फॉर्मूला होता है MEI का, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय सप्लाई प्राइस इनटू 100। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय प्राइस सप्लाई इज इक्वल इनटू 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो प्राइस जो होगी वो क्या होगी, प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो होगी, जो प्रॉफिट करे, कितना प्रॉफिट करवा रही है, 2,000 का प्रॉफिट करवा रही है, तो जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड होगी वो 2,000 होगी। जो अपनी प्राइस होगी वो कितनी होगी, 10,000 होगी प्राइस सप्लाई इनटू 100 कर दो, जितना आंसर आएगा वो देख लो कितना आ रहा है। आई थिंक से सबको 20% आ रहा होगा। तो अब MEI इसको हटा दूं, जो MEI है वो कितना है, 20%, और ROI कितना है,
12%, तो इन्वेस्टमेंट करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा, 8% प्रॉफिट तुम्हें मिल गया ना, 12% तुम इंटरेस्ट पे कर लोगे, तो ये जो प्रॉफिट है ये तुम्हारे पास ही तो आ रहा है। 8% प्रॉफिट तो तुम ही रखोगे ना, मशीन तुमने ली, वो 2000 का फायदा करवा रही है, 20% वो कर रही है, और अब तुम्हें 12% लोन इंटरेस्ट देना है। थोड़ा सा इंटरेस्ट देना, फायदा 8% तुम्हारे, तो इन्वेस्टमेंट करोगे ना? करोगे कि नहीं करोगे? तो ये देखो द डिसीजन रूल, क्या करोगे? देखो MEI अगर 20% है और ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से 12% तुम्हें बैंक को देना है, तो तुम इन्वेस्टमेंट करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। अगर मान लो कि 12% सॉरी, तुमने जो मशीन खरीदी वो तुम्हें सिर्फ 10% का फायदा दे रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो तुम इन्वेस्टमेंट करोगे? कभी नहीं करोगे। क्यों? कौन करेगा? कोई बेवकूफ होगा कौन जो करेगा। क्यों? क्योंकि फायदा तो कम ही दे रही है ना वो, 12%, हम अपनी 2% तो हम अपनी जेब से निकाल के दे रहे हैं बैंक को, तो फायदा क्या हो रहा है? और उल्टा नुकसान हो रहा है, 2% हम अपनी जेब से निकाल के दे रहे हैं। और कभी कभी ये होता है कि 10% हमें मशीन से फायदा मिल रहा है और 10% ही हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो अगर आपको इंटरेस्ट लेना है, सॉरी बैंक को लोन पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, करो, नहीं करनी मत करो, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, ठीक है, आपके ऊपर है। ये देखो न्यूमेरिकल MEI एनालिसिस, देखो फर्म वांट्स टू इन्वेस्ट ₹10,000, देखो फर्म को कितने % इन्वेस्ट करने थे? 10,000 रुपीज को इन्वेस्ट करने थे, तो 2,500 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, 2,500 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, मतलब प्रोस्पेक्टिव यील्ड है 2,500। ROI कितना है? ROI इज इन मार्केट इज 12%, मतलब मार्केट में ROI 12% है, ठीक है। अभी हमें ROI से कोई मतलब नहीं है, अभी हम सिर्फ प्रोस्पेक्टिव यील्ड और डिवाइडेड बाय प्राइस सप्लाई और प्रोस्पेक्टिव यील्ड, तो ये 2,500 ऊपर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, अपना परसेंट कितना है? 25%। तो जो MEI है वो कितना है? 25%, और जो ROI है वो कितना है? 12%। तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। क्यों? क्योंकि आपको 12%, हाँ सॉरी, तो आपके पास क्या है? किसको मिल रहा है? जो 18% प्रॉफिट है वो तो आपको ही मिल रहा है ना, वो उसको ही मिल रहा है जो फॉर्म बनाने का सोच रहा है, मशीन में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको मिलेगा। आंसर आ गया, काम खत्म हो गया, चैप्टर ओवर गाइस, चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, खत्म हो गया चैप्टर, खत्म। अच्छा एक चीज बताना, हाँ वो तो बताना ही भूल गई, वो जो MPC और मैंने बताया था सेविंग फंक्शन वाला, MPS और APS वाला, उसका ना कुछ वो सुन लो फिर चले जाना। MPS वेरीज बिटवीन 1, 0 and 1। MPS क्या होता है? APS का देखो, APS का अगर मैं बताऊँ तो APS रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द करस्पॉन्डिंग लेवल। देखो APS क्या होता है? देखो APS रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग कर रहे हो ना, S/Y है, तो सेविंग टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, APS होता है, ठीक है। अब APS कैन नेवर, मतलब APS 1 भी नहीं, APC, सिर्फ APC 1 हो सकता है या मोर देन 1 हो सकता है, ना कि MPC, MPS और APS, ये कभी मोर देन 1 हो ही नहीं सकते या इक्वल टू 1 हो ही नहीं सकते, ठीक है।
तो एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू 1 और मोर देन 1. तो एपीएस कैन बी जीरो हो सकता है पर कभी भी 1 या 1 से ज्यादा नहीं होगा. नेगेटिव भी हो सकता है, एड लेस देन 1 भी हो सकता है, पर 1 और 1 से ज्यादा नहीं होगा. APS falls with the rise of income. APS falls with the rise of income. ठीक है. अब MPS का सुन लो, change in saving divided by change in income. MPS varies between 0 and 1. MPS क्या होता है? MPS varies between 0 and 1. बस इतना सा है. MPS जो वैरी होता है 0 और 1 के बीच में वैरी होता है. बस MPS का यही फॉर्म, यही उसका वो है. We have ended the chapter. Now see, this is the mock test. अगर ठीक है, मैं क्वेश्चन बोली क्योंकि बहुत छोटे छोटे लिखे हैं. What is the nature of PPC curve? For a given good, the price effect is given good के लिए price effect क्यों होगा, मतलब क्या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ एक्सेप्शन ऑफ डिमांड. फिर इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स ड्यू टू इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है, किसके कारण? इन सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी डिस्कशंस आर टेकन बाय, मतलब सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में डिस्कशंस कौन लेता है? आगे बढ़े तो which is a component of aggregate demand as a 2 factor. तो वो तो आपको आता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. सॉरी. फिर वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर क्या है वो बताना है. फिर सम ऑफ MPC एंड MPS अभी बताया. नेशनल इनकम इज मतलब नेशनल इनकम इन इज अनदर नेम, मतलब नेशनल इनकम को दूसरे नाम से क्या बोलता है वो भी लिखो. फिर fill in the blanks. PPC is also known as DAS curve. The sum of APC and APS is always equal to 1. आंसर ही बोल दिया. Bread used by a consumer is a dash good. The RBI acts as a dash to the government. Marginal product is the slope of dash curve. ठीक है. Then microeconomics studies the economy as a whole. True false बता रहे. Autonomous consumption can never be zero. Real GDP takes current year prices into account. APC can be greater than 1. Money is what money does. Imagine the following. ये तो कर लोगे तो बड़े हैं, ये तो दिख ही रहा है. ठीक है. ये छोटा है. 1 word. Who is the issuer of 1 rupee note in India या 1 rupee coin in India? Name the point where income equals consumption, वो आपको बताना है. What is the value of MPC? If MPS is 0.4 तो आप उस मेथड से कर सकते हो. 1 equals to MPC plus MPS, उसको फिर उसमें लिख सकते हो. ठीक है. What is the, फिर उसको अपनी बेसिक मैथ्स लगा के कर लेना. What is the slope of unitary elastic demand और define net exports? ठीक है. ये रहा न्यूमेरिकल्स, ये भी छोटा है भाई. Distinguish between final goods and मैं इसको बड़ा कर देती थोड़ा. Distinguish between final goods and intermediate goods. What are the 4 function of money? क्या क्या 4 function होते हैं? Measure of value, store of value और ये सब. Explain the law of diminishing marginal utility, बहुत अच्छे से explain कर देना. फिर explain the circular, ये long question है, ठीक है, 5 marks का. Explain the circular flow of income in a 2-sector model with a diagram. एक diagram के साथ करना. Explain the circular flow of income in 2-sector model with an diagram. फिर डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन, वो जो बताया था ना सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, एक्सप्लेन विद डायग्राम. ठीक है, कट कर लेना. ठीक है. आंसर की ये आंसर्स है.
न्यूमेरिकल्स के आंसर्स. ठीक है. So thank you guys. Keep learning, keep topping. Okay. So bye bye guys. Love you all. And don't forget to like, share, subscribe my channel. If you have any doubt, write in the comment below. I will solve it. Bye bye guys. Love you. Thank you. Keep learning and we will rule the state list. Okay. Of 2026-27. Keep topping. Okay. So, success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. So, bye bye, guys. Love you all. Thank you for watching this video. I know, lamba ho gaya, but bye bye, guys. Bye bye, bye bye, bye bye. Don't forget to like, share, subscribe my channel. And if you have any doubt in the question, in the topic, just ask in the comment section. I will solve it. And graph ki videos chahiye, just type yes, or if you want more videos of another thing, just write it. I will provide you. Bye bye guys. Love you all. Bye bye.